Dear students, now we are going to solve one example on the basis of projectile motion. Let's read the example first. An aeroplane is flying in horizontal direction with a velocity of 540 km per hour and at a height of 2200 meter. When it is vertically above the point A on the ground, a body is dropped from it. A body strikes the ground at a point B. Calculate the distance AB. Ignore air resistance. Also find the velocity at B and time taken to reach B. Okay. So in this example, we have been given an initial velocity of a aeroplane. It's in a kilometer per hour. Initially we have to convert it into a meter per second. Okay. So let's write down the given data along with a diagram. Okay, diagram draw करेंगे. We will draw the diagram and on that diagram we will just put the given data. Okay, and we will just recognize what we are supposed to find out. So check it here, guys. Same diagram I am drawing. Point A is here. Okay, so at the height of 2200 meter, nothing but the 2.2 kilometer. Okay, but we want to data in a meter only. Okay, so that's why I have written down here 2200 meter. Okay, from this point aeroplane is at this height and some object. Okay, what actually they have said over here, body. Okay, they have said ki one body is there. Okay, one body is dropped from the aeroplane at this point. Okay, but what happened? Okay, so that body follow the path like this and fall on a ground. Okay, at point B. Okay, point B के यहाँ पे वो drop हो गई body. Okay, so we have been asked to find out this distance. Okay, AB distance कितना है ये हमें find out करने के लिए बोला है. And given data is nothing but the initial velocity. Okay, obviously it is moving exactly horizontally. Okay, जो body ड्रॉप जो होगा मतलब क्या होगा, इट विल जस्ट डिटैच फ्रॉम द एरोप्लेन. ओके, इट विल डिटैच फ्रॉम द एरोप्लेन. व्हेन एट द मोमेंट व्हेन दैट बॉडी विल डिटैच फ्रॉम द एरोप्लेन, इनिशियली द टेंडेंसी विल बी टू मूव इन अ सेम डायरेक्शंस, मूव विथ द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन. ओके, तो वो क्या होगा, जो बॉडी है ड्रॉप करेंगे तो सेम वेलोसिटी के साथ वो यहाँ पे मूव होने के लिए ट्राई करेगा, बट ड्यू टू द ग्रेविटी इट विल फॉल डाउन. ओके, विद द प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, सो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा बॉडी का, 540 मीटर पर सेकंड. ओके, सो लेट मी राइट डाउन हियर गाइस, VA इज इक्वल टू we cannot write a VA over here because it is not, so let me write it here, point O. Okay, so VO will be equal to the how much, 540 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, देन आई विल गेट द वैल्यू इन मीटर पर सेकंड. सो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वैल्यू मिलता है 18 3 ज़ा 54, तो 30 हो जाएगा. 30 इंटू 5 150 मीटर पर सेकंड. ओके, वी गॉट दिस वैल्यू ओवर हियर फॉर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड. ओके, तो ऑब्वियसली गाइस अभी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही एग्जिस्ट होगा वेलोसिटी का. ओके, नो एनी वर्टिकल कंपोनेंट. वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा उसका ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा. वर्टिकल कंपोनेंट विल बी जीरो. ओके,
it will be 0. Vertical component of initial velocity will be 0 only. Okay, ये हमें ठीक से आइडेंटिफाई करना है. Okay, this is nothing but the point O, हाँ. Okay, not 0. What next? अभी देखो हमें क्या करना है. So what we are supposed to find, what we are asked to find out, calculate the distance AB and also find the velocity at B. मतलब स्ट्राइकिंग वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला और टाइम भी फाइंड आउट करने के लिए बोला. ओके, मतलब वी भी फाइंड आउट करने के लिए बोला. वी बी विल बी हाउ मच एंड टाइम टेकन विल बी हाउ मच. ओके, तो दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है. तो वी आर अवेयर अबाउट दैट कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ अ वी बी एक्स. ओके, एंड वर्टिकल वेलोसिटी जो रहेगा यहाँ पे, इट विल बी वी बी वाई. ओके, अगर ये दो वेलोसिटी पता है तो हमें ये ऑब्वियसली ये स्ट्राइकिंग का वेलोसिटी जो है वी भी पता हो सकता है अलॉन्ग विथ इट्स थीटा. ओके, थीटा बोलना, चलो ठीक है, थीटा का मैं अल्फ़ा से रिप्लेस कर देता हूँ, अल्फ़ा. ओके, एट एन एंगल अल्फ़ा वी बी इज़ एक्टिंग. ओके, दो चीज़ें पता करना, वी बी, अल्फ़ा, एंड एडिशनली टाइम टू रिक्वायर्ड. ओके, और टाइम ऑफ फ्लाइट, इन अनदर लैंग्वेज वी कैन से टाइम ऑफ फ्लाइट वी आर आस्क्ड टू फाइंड. चलो ठीक है, अभी इसको देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है. सॉल्यूशन, नाउ चेक इट कि व्हाट आर द स्टेप्स वी फॉलो. इनिशियली वी आर राइटिंग अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ओके, तो वी नो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑफ व्हाट टाइप, इट इज ऑफ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन. ओके, and it means that कि we have to apply only one relation, AC is equal to VT. ओके, एंड इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोशन का जो डायरेक्शन है वो है राइटवर्ड, तो ये आएगा हमारा पॉजिटिव. ओके, व्हाट नेक्स्ट, AC इज इक्वल टू VT. तो यहाँ पे S कितना है रे बेटा, S मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, फ्रॉम A टू B सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. सो इट विल बी अ पॉजिटिव. तो राइटवर्ड डिस्प्लेसमेंट है तो ये पॉजिटिव आएगा. कितना पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव AB. ओके, एंड V इज नोन टू अस. यस, V इज नोन टू अस. V कितना है यहाँ पे, इट इज नथिंग बट द VO इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, इट इज नॉट एक्टिंग इन एनी एंगल. ओके, इट इज ओके, इन अनदर वर्ड वी कैन से इट इज एक्टिंग एट एन एंगल 0 डिग्री. ओके, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो sin 0 इनटू वेलोसिटी, मतलब कितना आएगा, 0 आएगा. ओके, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कितना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी अ cos 0. cos 0 होता है 1. ओके, तो दैट्स वाई इट विल बी हैविंग अ कंप्लीट वैल्यू. ओके, तो वो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो आएगा आपका 150 मीटर पर सेकंड ओनली, मतलब सेम. ओके, व्हाट नेक्स्ट. तो अभी यहाँ पे डिस्टेंस हमें मिल गया. यस यस यस. ओके, तो वेलोसिटी इज नोन टू अस बट टाइम तो हमें पता नहीं है. ओके, हियर वी आर नॉट अवेयर अबाउट द टाइम. तो 2 अननोन टर्म्स आर देयर. ओके, T एंड यस. ओके, तो इट कैन नॉट बी सॉल्व. तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे. बट हियर विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन श्योरली वी कैन फाइंड द डिस्टेंस इन फ्यूचर AB. ओके, AB डिस्टेंस हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं. AB डिस्टेंस क्या होगा, AB विल बी 150 इंटू टाइम. ओके, जब भी टाइम मिलेगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें वैल्यू मिलेगा वेलोसिटी का. चलो ठीक है. ओके, अभी वर्टिकल वेलोसिटी देखते हैं यहाँ पे. वर्टिकल वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन. ओके, एंड इनिशियली देखो रे कैसे जा रहा है. अभी यहाँ पे एज्यूम क्या करना है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब है हमें इनिशियल उसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो मोशन है वो हमें सेट करना है पॉजिटिव. ओके, तो हम लोगों ने उसका वेलोसिटी
डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर करके उसको पॉजिटिव सेट कर दिया। ओके, तो उसके इक्वेशन क्या आते हैं यहाँ पे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट ओवर हियर, यस का वैल्यू क्या है बेटा अभी यहाँ पे, S का वैल्यू ऑलरेडी वी नो इट इज अ 2200 मीटर। ओके, बट हियर वी हैव टू take care of the positive or negative sign, so it is displacement is happening, vertical displacement is in a downward direction. Okay, it is the same direction of a initial vertical velocity, so here we can surely say that कि it is having a positive sign, so वो हो जाएगा positive 2200 मीटर। okay, and what is the initial velocity over here, initial velocity is the zero। okay, उसका कोई डायरेक्शन अभी चलो ठीक है डाउनवर्ड बोल दिया तो डाउनवर्ड, बट इट इज a zero। okay, एंड व्हाट नेक्स्ट, टाइम। टाइम यहाँ पे हमें पता है क्या, नो टाइम तो नहीं पता है। एक्सीलरेशन पता है क्या, यस इट्स अ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके, वर्किंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड इट इज द सेम डायरेक्शन ऑफ अ इनिशियल वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन विल बी अ पॉजिटिव और हियर इट इज अ प्लस 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, बाय पुटिंग ऑल द values in this equation we can get the value of time, okay, nothing but the t, so let's put the values 2200 is equal to now check it guys, u is the 0, तो ut वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 9.81 इंटू 9.81 इंटू टाइम का स्क्वायर, t का स्क्वायर। ओके, so it will become, it will give the value of t, जो टाइम का वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग दिस you will be able to get the value of t, so it is 21.178 सेकंड। ओके, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारा, तो टाइम तो मिल गया, तो इमिडिएटली हम लोग उसका इफेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते, 150 इंटू टाइम जो मिला है 21.178 सेकंड। ओके, तो ये उसका ए बी का जो वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पे, इट विल बी 3176.75 मीटर। चलो ठीक है, मतलब ये ए बी डिस्टेंस जो फाइंड आउट करने के लिए बोला था हमें, तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। अभी हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, एंड टाइम। ओके, टाइम भी ऑल्सो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। ओके, टाइम हमें मिला है यहाँ पे 21.178। ओके, ए बी डिस्टेंस जो चाहिए था वो मिला हमें 3176.75 मीटर। ओके, टाइम इन ए सेकंड, एंड अभी हमें क्या निकालना है, वी बी निकालना है। ओके, तो वी बी के लिए थोड़ा देख लेते हैं कि क्या करना है। हमें इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो पता है। ओके, तो दैट इनिशियल वेलोसिटी विल बी द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मतलब क्या रहे, VOX विल बी इक्वल टू द VBX। ओके, तो VOX मतलब क्या, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, मतलब इटसेल्फ इट इज द VO ओनली। ओके, ये सेम है कितना, VO है, तो यहाँ पे VBX हमें मिलेगा कितना रे बेटा, VBX विल बी 150 मीटर पर सेकंड। ओके, एंड वर्टिकल वेलोसिटी जो है, ओके, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, VBY, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला U प्लस AT। ओके, तो U क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, इट इज नथिंग बट द 0। ओके, मतलब VOY। ओके, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कितना है रे उसका, वो तो 0 है। ओके, एंड एक्सीलरेशन पता है, यस एक्सीलरेशन इज नोन टू अस। ओके, कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, पॉजिटिव आएगा, प्लस 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एंड टाइम पता है, यस टाइम भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। ओके, टाइम इज ऑल्सो नोन टू अस, टाइम कितना मिला है, 21.178 सेकंड। ओके गाइज, एक्चुअली नो नीड टू राइट डाउन द टाइम अगेन, बट स्टिल वी हैव रिटन इट फाइन। आगे बढ़ते तो VBY जो हमें यहाँ पे मिलने वाला है, सो इट विल बी इक्वल टू द U तो 0 हो गया, प्लस AT मतलब 9.81
into time का square, not a time का square, only time, 21.178. Okay, so that value we are getting over here 207.76. 207.76 meter per second. Okay, now I hope you will be able to find out the value of VB now. Okay, still मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ. Okay, if you got the value of VBX, okay, VBX का वैल्यू मिला है हमें 150 मीटर पर सेकंड. ओके, VBY का वैल्यू मिला है 207.76 मीटर पर सेकंड. ओके, तो ऑब्वियसली ये VB का वैल्यू हमें कितना मिलेगा. ओके, VB will be equal to under root of VBX square plus VBY square. Okay, and how much will be the value of this alpha. ये अल्फा का वैल्यू कितना रहेगा. अल्फा एंगल विल बी द tan इनवर्स ऑफ VBY upon VBX. Okay, and guys, I have already told you that this you can get. I'm just reminding you again, this can be find out with the function in the calculator, with function in calculator. Which function? Let me tell you, function in scientific calculator. Okay, तो shift plus pole. Okay, ये फंक्शन यूज करके शिफ्ट पोल. ओके, पोल कहाँ पे लिखा होता है. ये पोल लिखा होता है आपके प्लस बटन के ऊपर. ओके, अलग अलग कैल्सी के ऊपर शायद से वो अलग अलग होगा उसका पोजीशन, बट ये शिफ्ट पोल अगर यूज़ करेंगे तो इसके बाद में आपको क्या करना, ब्रैकेट में वैल्यू पुट करना होता है VBX का और VBY का. ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इट विल डायरेक्टली गिव यू द वैल्यू ऑफ VB एंड अल्फा. ओके, अल्फा का डायरेक्टली आपको वैल्यू शो करेगा. ओके, तो हाउ मच यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ VB एंड अल्फा ओवर हियर. लेट अस चेक. VB का वैल्यू फाइनली हमें मिलता है यहाँ पे 256.25. meter per second, and value of alpha we are getting over here 54.17. ओके, सो ये इन दिस वे वी कैन, यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. दिस इज एक्स्ट्रा वी आर डूइंग VBS 256.25 meter per second. Okay, this is nothing but the velocity of strike. So in this way we have solved the complete example. Okay, dear students, let me tell you, we have to just read the example carefully, and we have to just make a diagram like this, and you have to just put the given values, and you have to just identify what things we are supposed to find out. Okay, and by applying these steps of horizontal velocity and vertical velocity, okay, easily you can get the desired output. Okay, desired things asked in the example you can easily find out. I hope this example is understood by you. Okay, see you all.